Quantitative term is bit a narrow one, and the qualitative term is be a more broader term. After that, we said that whenever we were comparing the nations or the world economies on the behalf of development, like we were comparing the Indian economy with respect to US economy, Indian economy with China economy, how we can compare? What are the measures, what are the basic indicators on the behalf of which we will compare the two nations? Okay, so we said that it will be compared on the behalf of, first of all, the initial stages, it compared on the behalf of GDP. Thank you so much. On the behalf of the GDP or GDP, yeah, GDP, not GNI and other thing else. So we compare the two nations on the behalf of the GDP. We calculate the GDP of each nation and we like to compare with each other. Then we said that obviously we are calculating our GDP into the rupees, they are calculating into dollars, they are calculating in yen, dinar, pounds, and so on. So ultimately, the first measure of economic development between the nation was GDP, gross domestic product, at constant prices. Further, there comes some economists, those say that no, this is not the actual measure, there are some flaws in the economy, because you are not talking about the actual development of nation, you are talking about the productivity, you are talking about the total GDP, आप सिर्फ output की बात कर रहे हैं. Then they said that okay, we can talk about per capita income. Then the second measure of comparison comes up as a per capita income. उन्होंने कहा that is the only stage of individual one ना, no, now it is a better one. तो उन्होंने सेकेंड जो मेजर ऑफ डेवलपमेंट का लेना शुरू कर दिया वो ले लिया पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम सेज इट्स इंडिविजुअल इनकम डिवाइड बाय द पॉपुलेशन. इट मींस नाउ few things has been eradicated out of it. What was the eradication? Earlier we were not talking about the population, we were talking about only the GDP, isn't it? Now we are talking about the population as well, because total GDP divided by the population is per capita income. It means somewhere somehow we are also considering the per capita. Individual population of the nation is also being considered, because कुछ nations जो बहुत बड़े nations हैं, उन nations के पास जीडीपी ज्यादा भी हो तो उनका पर कैपिटा इनकम, उनका जीडीपी उतना कंसीडर नहीं किया जाएगा जितना एक छोटा नेशन विद सम स्मॉल पॉपुलेशन कैन प्रोड्यूस. तो समवेयर समहाउ पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर. दैट्स व्हाई वी कंपेयर. एज आई हैव टेकन एन एग्जांपल एट डोमेस्टिक लेवल इन इंडियन इकोनॉमी टू. एक साइड पे गोवा है, एक साइड पे महाराष्ट्र है. जितना भी जीडीपी सॉरी एसडीपी महाराष्ट्र कैलकुलेट करेगा, अगर उतना ही एसडीपी गोवा क्रिएट कर रहा है, तो स्टिल देयर इज अ डिफरेंस इन द डेवलपमेंट. Goa is a smaller state with a small population and Karnataka or Maharashtra is in a big state. So that's why the second indicator of development when we come up is a per capita income. So that they said that this is the eradication of the problems, like जो आपको problem लग रहा था कि population को measure ही नहीं किया, उतनी ही GDP 50 लोगों में बढ़ती है, उतनी ही GDP 500 लोगों में बढ़ती है. तो इक्वालिटी कैसे हो गई दो नेशंस की? नो, पर कैपिटा इनकम कहते हैं नहीं. जब 500 GDP with 5 people, 500 GDP with 500 people, तो कंपैरिजन में डिफरेंस आ गया. तो सेकेंड पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट क्या था? per capita income. Then the per capita income comes up with the main problems. Per capita income कभी भी हमें real picture नहीं दिखाता. It is just an average income received by a person within one financial year. एक साल में एक देश में जितने भी लोग एक पर कैपिटा एवरेज जितना इनकम, एवरेज इनकम जो ग्रेट कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज नॉट द रियल पिक्चर. We are not all the population which is to be the part of a young generation, which is the part of the higher side of age. They are not getting, they are receiving per capita income, but they are not contributing in the per capita income. So that's why formula of per capita income itself have flaw. तो फिर उसमें भी हमें ब्रेक आ गया कि नहीं, पर कैपिटा इनकम भी इक्वालिटी का मेजर नहीं हो सकता, डेवलपमेंट का मेजर नहीं हो सकता. Then we come up with a new thought like how to measure the economic development of different nations. GDP has been crossed up, per capita income has been crossed up, so we need to have some another measure which is not only to the monetary but to the social and economic as well. So that's why in 1970s, the later 70s, like 78, 72, in later 70s, Morris D. Morris come up with a new model, come up with new indices that is called PQLI, Physical Quality of Life Index. He says, I'm just gonna write down, it was given by Morris D. Morris, David Morris.
in late 1970s. Okay, they come up with the new thought that was PQLI, that is physical quality of life index. Physical quality of life index. They said that if we want to compare, if we want to find out a comparison between the nations on the behalf of the development, we should adopt this methodology and we can calculate the development of the nations, because that parameters, indicators would be same for all the nations. There will be no difference regarding population, there will be no difference regarding the currencies of the nation, there will be no difference regarding the base year of the two nations. So all the flaws will be eradicated. So we are coming up with a few dimensions and few indicators. So that's why in 1970, late 70s, Maurice D. Morris come up with the PQLI, Physical Quality of Life Index. Under this, basically what they want to calculate, they want to find out actual development of human in the nation. How we can measure the development of nation? That depends upon our health and education and income as well. So they took the three indicators under, they took the three dimensions. Under three dimensions, they have taken three different indicators, and they have a different methodology के बेस पे calculation के basis पे ranks के basis पे comparison. So we were calculating on the behalf of the numeric numbers, which is a calculative data on the behalf of which we can calculate the economic development of different nations. So we started with the three basic indicators. Okay. The first, they said that they are talking about the life expectancy, जिसको उन्होंने longevity word use किया. Longevity means how long a person in a nation will survive. अगर एक न्यू बेबी बर्थ ले रहा है तो वो कितने साल तक जिएगा, लॉन्गेविटी कितनी होगी उसकी. लॉन्गेविटी वाज द मेन डायमेंशन, बट उसके अंदर बात किसकी कर रहे थे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे. तो पहला हमारा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसमें उन्होंने लॉन्गेविटी की बात की, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. डन. तो इसके आगे इंडेक्स लगा दिया ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कैलकुलेट कर रहा है. Done. Longevity. That was a first indicator which calculate the age of people in a nation. Higher the age of a population, higher will be the development of a nation. Lesser will be the age or survival age of a nation. That will be showing a less development of a nation. So it represents basically how long your population will survive. Second point was regarding the literacy rate. Health, एक हमारा health का component हो गया. Second was literacy rate. बेसिक लिटरेसी इंडेक्स बोला इसको, लिटरेसी इंडेक्स भी बोल सकते हैं, whatever you want to say. इंडेक्स stands for IMI, infant mortality index. इसके अंदर आ क्या रहा है? infant mortality rate. What do you mean by infant mortality rate? No, infant mortality. Mortality means deaths. If a person out of 1,000 live births में से 1 year की एज तक जिन बच्चों की डेथ हो जाएगी, that is called life infant mortality rate. So they said that infant mortality rate is a third indicator of this index, in which we are talking about the basic health facilities in the economy. Life expectancy आपको पूरे ईयर, पूरी लाइफ लॉन्ग की हेल्थ के बारे में बता रहा है, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बता रहा है. ये आपके स्टार्टिंग एज की हेल्थ के बारे में बता रहा है कि अगर यहाँ से सर्वाइव कर गए तो यहाँ भी सर्वाइविंग, खैर लास्ट स्टेज पे तो इट विल डिफिकल्ट टू सर्वाइव बाय द मेडिकल फैसिलिटी, बट द मेडिकल फैसिलिटी शोज ओवर दैट. अगर यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा है, इम्यूनाइजेशन ज़्यादा है, मेडिकल केयर ज़्यादा है, इन्फेंट केयर ज़्यादा है, तो ये डेथ रेट्स कम होगी. अगर ये डेथ रेट कम होगी तो कुछ और इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? हाँ जी, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी किसी कंट्री की कम है तो वो किस
चीज की तरफ बढ़ता है, क्या साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव ऑब्वियसली, बट वो क्या आगे क्या इसके रेप्लिकेशंस आएंगे? वेरी नाइस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। पीपल विल फील लाइक कि अगर 10 बेबीज बर्थ ले रहे हैं उसमें से 5-6 तो ऑब्वियसली विल गोना डाई, तो दे विल हैव अ मोर चिल्ड्रन, बट इफ दे फील लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी इज लेस, ओनली वन विल टेक अ बर्थ एंड इट विल सर्वाइव फॉर 80 years in the recent time periods. We don't try to make it 5 to 7 children and one will survive in the later on stage. That happened into past eras when the people were not sure that the infant will survive for a long time or not. इस डर की वजह से भी they will having a more children. So that's why अगर infant mortality rate control रहता है इकोनॉमी में, तो ये कहीं ना कहीं हमारी population को control करने का भी एक symptoms होते हैं. So we have 3 indicators. Life expectancy, literacy rate and infant mortality. On the behalf of all 3 indicators, we will calculate the PQLI. अभी इसकी जो रेंज है, पहली बात ये इसके इंडिकेटर्स हो गए, इसके डायमेंशंस हो गए, द रेंज बिटवीन टू 1 to 100. इसके जो आंसर आएगा आपका कैलकुलेशन के बाद वो 1 to 100 और 0 to 100 होता है. जैसे 1 तो हाईएस्ट वैल्यू है, 0 मिनिमम वैल्यू है, 0 to 100 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करती है. जितनी आपकी हाई स्कोर होगा, हाई वैल्यू होगी, उतनी डेवलपमेंट ज्यादा है. जितनी वैल्यू 0 के पास होगी उतनी वैल्यू कम है, मतलब उतनी अंडर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अभी वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग लाइक इन दैट, इस मॉडल की बात कर रही हूँ. इस इंडेक्स में उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि आप हमसे कंपेयर करें, आप हमसे कंपेयर करें. नो, वी आर जस्ट सेइंग वी आर गिविंग यू द डेटा. हम आपको 3 इंडिकेटर दे रहे हैं, अपनी कंट्री में डेटा कलेक्ट कीजिए, अपनी वैल्यूज निकालिए, अपना स्केलिंग कीजिए एंड कम अप एट अ constant level. Then we will find out all the countries are coming their data, we will make the ranks and we'll get that कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है. तो डेवलपमेंट का मेजर करने के लिए हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया. अभी इसके अंदर कैलकुलेट कैसे कर, as I told you 229 is maximum and 9 is minimum and later on is a life expectancy. That is a 77 is a maximum, 38 is the minimum. So on the behalf of that is coming on this side, 0.56 coming this side. उन सबका total divide by 3 average. That is your PQLI value. Done. These are the goalposts which is to be taken as to be constant for the world economies. Done. So here we are talking about the PQLI is a calculator which can calculate the development of the nation on the behalf of the 3 indicators. अभी इसमें हमारा जो इंडिया की वैल्यूज है, टेकिंग एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2020-22, इंडिया की वैल्यू है 70 years, 70.19 इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ईयर्स की होगी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी. 27 इज अ इन्फेंट मोर्टेलिटी जो मैंने आपसे बोला पर 1000. And your literacy rate is 77.77%. अभी देखो ये years में है, ये per 1000 है और ये percentage में. पहले इसको normalized करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, फिर उनका एवरेज करके आप इंडिया की PQI वाली वैल्यू निकालेंगे. डन. इंडिया की PQLI रैंक इज 117 आउट ऑफ 189 कंट्रीज. ठीक है, तो करंट पॉइंट्स लिख लो. एक तो ये हमारी वैल्यूज आज इस बार की नई करंट वैल्यूज हैं और हमारा जो रैंक है वो ये वाला है. सो दिस इज ऑल अबाउट PQLI, हाउ वी कैन फाइंड आउट. When we started PQLI in initial stage in 1970s, there was only 23 countries, the developed and developing. 23 countries were there, but at present the total number of countries which is calculating their PQLI is 189 because they come up under the UNDP HDI. बात ये इसके बाद का है HDI, but we have started with 23 countries, but now we have reached to the 189 countries. Done. So this is the calculation and the parameter. Find out some criticisms out of it. If we need, जैसे हमने आपसे बताया, initially we started with the GDP. You were not there. We started with the GDP कि हम सबसे पहले डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते थे? GDP से. GDP में क्या प्रॉब्लम आई?
कंट्रीज का साइज, कंट्री की इक्वालिटी, कंट्री का पॉपुलेशन, कंट्री का बस सिर्फ क्वांटिटी ना, कितना प्रोडक्शन करे वो देख रहे थे। पर कैपिटा इनकम ने कहा कि पॉपुलेशन को भी मेजर कर लिया, लेकिन इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है तो आप उसको वैसे ही नहीं देख सकते, उसको भी हमने क्रॉस किया। देन वी कम अप विद PQLI। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ओवर देयर? कैन यू फाइंड आउट समथिंग? हाँ जी बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या पता वो उस ईयर उस कंट्री में कोई फेमाइन वगैरह ना आया हो, इसके कारण वो कम हो सकती है। तो उस साल उनका वैल्यू कम हो जाएगी, बस और क्या होगा, अगले बार ठीक हो जाएगी। ये देखो हमें ये प्रॉब्लम लगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे रिलेटेड है? दोनों हेल्थ के इंडिकेटर हो गए, एक एजुकेशन को हो गया। इनकम की तो बात ही नहीं की। They talked about any GDP, SDP, per capita GDP, per capita income और the national income, US डॉलर, कुछ भी नहीं बात किया। तो उन्होंने इनकम कंपोनेंट, जो पहले वाले मेन कंपोनेंट इनकम पे बात करते थे, आपने इनकम को ही छोड़ दिया। तो somewhere somehow it is not a true picture। एवरेज बेसिस ही खराब हो गए जब दो इंडिकेटर्स मैक्सिमम पार्ट जो है वो एजुकेशन को हेल्थ को लेकर आ रहे हैं। सो वी not gonna having we have some limitations out of it, इसलिए हमने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट तो किया हुआ है, इंडेक्स बन गया है तो, लेकिन उसके बाद फिर रिफाइनमेंट आ गई, नया मॉडल बन गया। सो वी आर कमिंग अप विद द नेक्स्ट वन इज HDI। ये चीज मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पॉजिटिव इंडिकेटर कौन सा है और नेगेटिव इंडिकेटर कौन सा है। नेक्स्ट तो अब सारे पॉजिटिव आएंगे। ये स्टार्टिंग में UNDP के अंडर नहीं आया था, बट नाउ इट इज अंडर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। That's basically a second major index after the to measure the development of two nations, है ना, within the nations or between the nations। अभी तो हमने नेशनल, जैसे हमने आपसे बताया था, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट नेशनल लेवल पे भी निकलती है और वर्ल्ड लेवल पे भी निकलती है। तो अभी हम HDI जो है नेशनल की भी HDI निकालने लगे, स्टेट लेवल पे भी, और उसको भी हम कंपेयर करते हैं। सो इट वाज स्टार्टेड इन अंडर द chairmanship of two economists. One is a Pakistani economist and second one was your Indian economist. There was a Mehboob-ul Haq and the Amartya Sen. दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, एंड इट वाज अंडर द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसके अंडर ये आया। सो Haq stands for HQ and Mehboob-ul Haq and Amartya Sen in 1990 under the chairmanship of UNDP, ये इसका डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ना। सो दे सेड दैट इट वाज बेसिकली गोल कमिंग टू 1990, सॉरी 1990, मैं बोल 90 रही हूँ, लिख 1990 में आया था ये फर्स्ट टाइम पे। इसका मेन गोल क्या था? इट गोल्स वाज टू एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस एंड फ्रीडम। अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस एंड फ्रीडम प्रोवाइड टू ऑल ऑफ द नेशन। सबको इक्वल चॉइस, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दैट वाज द मेन गोल ऑफ दिस HDI। Now they said that under the UNDP, we said that one more important thing. Whenever we calculate HDI, that was just after the problem, no doubt, it was in 1970. PQLI 70 में आया और ये 1990 में आया, तो almost many of the years were there which will be calculating the PQLI as a measure of economic development। तो फिर उसके बाद जब HDI आया तो उन्होंने उनकी सबसे बड़े फ्लॉ को रेक्टिफाई किया कि इनकम was not considered by you people. You people means to say by the previous indices. So we need to rectify that problem. हमें वो वाली प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, क्या? इनकम को लाना पड़ेगा। हमें हेल्थ ठीक है, एजुकेशन ठीक है, हमें
इनकम के इंडिकेटर को लाना पड़ेगा. सो दे डिवाइडेड देयर मेन 3 इंडिकेटर्स वर एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स. तो उन्होंने हेल्थ को एक पार्ट किया, इनकम को अलग पार्ट किया और एजुकेशन को अलग पार्ट किया. सो बिफोर दैट इट स्केल्स बिटवीन 0 to 1. वो स्केल 0 से 100 था, ये 0 से 1 के बीच में लाया करता है. जितना 1 के पास जाएगा उतना अच्छा है, उतना हाई वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन है. जितना 0 के पास जाएगा उतना अंडर डेवलपमेंट को दिखा रहा है. ठीक है जी. So higher the value, higher will be the development, lower will be the value, lower will be the development. Now they said that we started with the same thing. Shall I move it? As is to go for the third part. 3 components I'm taking. Again, one was life expectancy index. Life expectancy index में हमने वही लिया, longevity, कितने साल maximum जिएंगे आप. What is the age at maximum age in your country the people will survive or they will live their life. So longevity stands for life expectancy. पहला इंडेक्स में life expectancy लिया. इसके अंदर आ क्या रहा है? तो ये आपको याद करने इसलिए आसान रहेंगे अगर हम साथ साथ करेंगे कि ऑलमोस्ट सेम चीजें चलती जा रही हैं. तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेम थिंग कि पहले हमने ये सब किया हुआ है. Second one is your education index. And third one was your income index. Done? Under the part of this ये हेल्थ इंडेक्स हो गया ना, हेल्थ है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो इट्स अ हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स. अंडर द हेल्थ इंडेक्स दे हैव टेकन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ. ऑब्वियसली इट विल काउंटेड इनटू द इयर्स जैसे पहले हमने किया. नाउ द सेकंड वन इज एजुकेशन. अंडर दिस दे हैव टेकन 2 कंपोनेंट, एडल्ट लिटरेसी rate and gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio and adult literacy rate. 2 components लिए इन्होंने. And third में उन्होंने लिया हमारी income per capita GDP at constant prices. ठीक है. वी आर टॉकिंग अगेन विद द सेम, वी आर जीडीपी पर कैपिटा. अभी हमें पता है ना, ये हम निकाल सकते हैं. अगर पर कैपिटा निकालना है तो इट इज जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन. सो एट कांस्टेंट प्राइसेस, है ना, वो वही चीज रहेगी. दैट इज द सेम थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन. सो वी हैव 3 indicators, health index, education index, income index. Under this we have a life expectancy, adult literacy, gross enrollment, per capita GDP. What is adult literacy? 18 प्लस वाले कितने? तो फिर लिटरेसी रेट ना हो गया. एडल्ट लिटरेसी 18 प्लस, उसमें 15 लिया था. एनीथिंग एल्स? कम ऑन. ओके. What do you mean by gross enrollment? टोटल लोग, हाँ, जो लोग कोई भी एजुकेशन लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, all 3 kind of education taken by the people. Primary stands for 5th, secondary stands for 10th, and higher education stands for 12th or is a higher education. All the 3 kind of education taken by people in your country by the total population, it stands for gross enrollment ratio. अभी हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में कितने लोग इनरोल्ड हो रहे हैं वो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है. तो इसमें अपने साइड पे इसको शॉर्ट में लिख लो, द प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस हायर, 5th, 10th प्लस
हाई एजुकेशन में इनरोल्ड लोग, दिस इज 15 प्लस एज, दोज आर लिटरेट. The people literate above the age of 15 is considered as the adult literacy rate. So these are the two, primary, secondary, higher education. अभी ये gross लिखा है ना, so it means to say जितने भी लोग enrolled हुए हैं, total enrollment upon total population, तो वो gross enrollment आ गई. Total population में से जितने लोग enrolled हो गए education में, कोई भी एजुकेशन में, वो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आ गई. तो दैट वी कैन फाइंड आउट, बट अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वी मस्ट बी नोइंग कि पूरा इसका मीनिंग क्या होता है. एनरोलमेंट रेशियो ये है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब पूरी पॉपुलेशन के वो लोग जो एनरोल्ड हुए हैं, तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गई. अगेन वी कैन से, वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वी कैन कैलकुलेट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वी कैन फाइंड आउट द पर कैपिटा जीडीपी. उनको क्या करेंगे, दोबारा से देखो, ये कौन है, ये क्या है, few things can be years, how many years, how many number of people. तो numbers भी आ गए, years भी आ गए, percentage भी आ गई. ये किस में आ गई, रुपीस में आ गई, मॉनेटरी फॉर्म में आ गया. तीनों इंडिकेटर अलग अलग है, एक परसेंटेज का, एक नंबर्स का और एक रुपीस का. सो व्हाट वी नीड टू डू, नॉर्मलाइज्ड. हमें सबसे पहले तीनों इंडिकेटर्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. नॉर्मलाइजेशन के लिए वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम. इज देयर एनी इंडिकेटर व्हिच इज अ नेगेटिव इंडिकेटर? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है. कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एक्चुअल माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो हमें सेकेंड फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हियर वी हैव ऑल द पॉजिटिव इंडिकेटर्स. सो वी विल यूज एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. I think you are getting all people, so you are answering good. So आपका मेन एक ही फॉर्मूला लगेगा, आपको दूसरा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अभी ये तो इसने क्या किया है, नॉर्मलाइज्ड द वैल्यू. नॉर्मलाइज करने के बाद हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर हेल्थ इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस इनकम इंडेक्स डिवाइड बाय 3. We can get the value in decimals between 0 to 1, and that on the behalf of this we will get the ranks in the world economies. Getting? That's it. चले आगे. In 2010 we changed the methodology. हमने इसको कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया. ये मेथोडोलॉजी होती है ना. ये मेथोडोलॉजी ही है, वो फॉर्मूला है. हमने मेथोडोलॉजी चेंज की. क्यों? जब 1990 में आए तो अगेन इन 2010 वी हैव 20 इयर्स. 20 साल तक आपने यही मेथड लगाया इक्वालिटी को मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए. बट इन लेटर ऑन स्टेज वी फाइंड आउट देयर सम लिमिटेशंस वर देयर इन द सेम मॉडल. इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमें मिलनी शुरू हो गई. व्हाट वर द लिमिटेशन यू कैन फाइंड? क्या लिमिटेशन आपको इसमें दिख रही है? सॉरी, हाँ जी बताएं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी बात नहीं है, कांस्टेंट रहनी है.
कुछ और कैसे मेजर करेंगे? वो जो मल्टी एमपीआई में किया था, हाउसिंग फैसिलिटी, बैंक अकाउंट, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वो वाला उतना सारा डेटा कौन कलेक्ट करेगा? We have to, but otherwise we haven't taken this thing. That is still a recommendations. But 2010 में हमने कुछ चेंज तो किया। कुछ और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा। Yes. पर कैपिटा जीडीपी को उन्होंने कहा कांस्टेंट प्राइसेस पे आप अपनी कंट्री में कर रहे हैं। आपकी कंट्री के कांस्टेंट प्राइसेस और है, मेरे कंट्री के कांस्टेंट प्राइसेस और हैं, आपका बेस ईयर अलग है, मेरा बेस ईयर अलग है। आप डॉलर्स में करते हैं, आप रुपये में, अब येन में, प्रॉब्लम तो आ गई। अल्टीमेटली इट शुड बी, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे सबको बराबर कर रहे हो तो वो मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। जब सबके गोल पोस्ट सेम लिए, गोल पोस्ट सेम लिए ना, कि सारे जो है 229 इतना ईयर इतना बोलेंगे, 30 इयर्स और 40 इयर्स, मेजर सेम लिए तो आपको ये मेजर भी सेम लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई, और उनको ये जो एडल्ट लिटरेसी और ग्रॉस एनरोलमेंट से भी प्रॉब्लम था, सो दे हैव टेकन द न्यू रिकमेंडेशन विद द मेथोडोलॉजी एंड दे हैव चेंज्ड द न्यू मेथोडोलॉजी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सेम रहेगा, ऑब्वियसली जितने साल आप जिएंगे दैट रिमेन्स टू बी सेम। सेकेंड व्हाट वाज, सो आई एम राइटिंग अगेन, दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगेन। इसमें उन्होंने दो अलग चीजें ली। दैट इज मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जीडीपी की जगह कर दिया GNI per capita at purchasing power parity US डॉलर। इनकम को उन्होंने चेंज करके GNI पर कैपिटा कर दिया, और वो भी लिया उन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर बेसिस पे। Earlier we were taking it at constant prices and on currency. Now they have taken it as on the purchasing power parity basis. Done? So ये हमने differences लाए। अभी you need to understand what does mean by the mean years of schooling and expected years of schooling. वो normal है, हमें पता है। देखो difference कहाँ आया? ये domestic की बात करता था, ये national की बात कर रहा है। Obviously product and income was almost like रुपीज में था, कांस्टेंट प्राइसेस पे था, ये परचेजिंग पावर पैरिटी भी है। आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला आ गया है ना करना? आपको उस दिन बताया था हमने, the basket of commodities you can buy with the our currency and a basket of commodity you can buy with another nation। दोनों की परचेजिंग पावर द कमोडिटीज को डिवाइड कर देते हो, कितने पैसे हमें खर्चने पड़ेंगे एक बास्केट ऑफ गुड्स लेने के लिए, कितने डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे बास्केट ऑफ कमोडिटी लेने के लिए। जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाती है। तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के बेसिस पे GNI, डोमेस्टिक नहीं NFY भी एडेड है इसमें, नेशनल इनकम भी आप कर चुके हैं, तो आप उसको इसमें कन्वर्ट करना जानते हैं। डन। Here is a mean years of schooling, that is a 25 years and above spent into the school। अगर आप 25 इयर्स के हैं तो आपने कितने ईयर स्कूल में लगाए हैं? स्कूल डजंट मीन लाइक ओनली टू 12th तक, उसके बाद कॉलेज हो गया, तो आपने कितने साल मिनिमम एज लगाए हैं? मे बी यू हैव टेकन ओनली 6 years or 8 years in the school, you may have taken 13 years in the school। यानी वो पॉइंट नहीं, जब नहीं किया, हाँ वो 2 साल किए एक क्लास को, तो वो हाँ कम इनके किए ना, इनको 8 साल पढ़ाया सिर्फ 8 इयर्स पढ़े, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इन्होंने 13 इयर्स लगाए, तो इनका एवरेज जो है वो नॉर्मल एवरेज से कम प्लस माइनस हो सकता है। आर यू गेटिंग? और एक कंट्री में सारे के सारे बच्चे ही 10 इयर्स तक पढ़ते हैं, तो उनका एवरेज हाई होगा। एक कंट्री में कोई भी नहीं 10th क्लास पढ़ता, सारे 4th क्लास के बाद 10 चुप हो जाते हैं, सो अल्टीमेटली इनका एवरेज कम हो जाएगा। तो मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग आपके कंट्री में, आपके एरिया में 25 इयर्स तक क्वालिफिकेशन को अटेन करना माना जा रहा है। यूजी विल गो फॉर पीजी एंड यू विल गो फॉर वन प्रोफेशनल कोर्स, 25 तक है। 25 इयर्स तक आप कितने इयर्स एवरेजली मीन ईयर में अपने स्कूलिंग पे देते हो? जितनी हाई होएगी उतनी अच्छी बात है। अगर सारी आपकी वैल्यू 18 आ रही है, इसका मतलब सारी कंट्री में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
अगर वैल्यू 5 आ रही है इसका मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई 1-2 लोग होंगे जिन्होंने हाई वैल्यू ली और बाकी बिल्कुल ही इलिटरेट है, तो आपका एवरेज 5 पे आया। सो दैट इज द पॉजिटिव इंडिकेटर। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आपको 5 ईयर का चाइल्ड कितने साल मैक्सिमम आपकी कंट्री में पढ़ेगा, कितना एक्सपेक्ट करते हो आप? 15 साल। 15 साल पढ़ेगा तो कौन सी क्लास में आएगा? He'll complete graduation. 20 years में he'll complete graduation, 1-2 साल ऊपर नीचे लगा के 20 years में graduation complete करेगा। And graduation is a required which is to be done by every people in their country. And there must be some other nations like developed nations जहाँ सिर्फ graduation ही, वहाँ सिर्फ 12th करना is more than enough, isn't it? और कुछ countries ऐसी हैं जहाँ पे all people are scholars like more than postgraduates. So that depends कि आपकी country में लोग कितना ज़्यादा और लंबा पढ़ते हैं। So these are the 2 indicators, mean years of schooling and expected years of schooling. This is GNI per capita, US dollar. This is the life expectancy. ये सेम रह गया। अभी हमें जब इसका कैलकुलेशन करना है, हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। हम यहाँ पर करते थे वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मीन, वो फॉर्मूला सेम है। वो फॉर्मूला किस चीज का है? वो तो सिर्फ नॉर्मलाइज्ड का फॉर्मूला है, वो सेम रहेगा क्योंकि सारे अलग हैं। ये ईयर्स में हो गए, नंबर में हो गए, वो रुपीस डॉलर में हो गया, ये ईयर्स में हो गया, तीनों चीजें अलग है। पहले नॉर्मलाइज्ड करेंगे फिर उसको वैल्यू में पुट करेंगे। उसके लिए वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये 2 इंडिकेटर्स हैं। इसमें भी आई वुड हैव टोल्ड यू दैट इज 2/3 एंड दिस इज 1/3। इन दोनों का भी पहले टोटल करोगे ना, एक बनाओगे, ऐसे इन दोनों का भी एवरेज करोगे। तो इनका पहले एवरेज करते हैं फिर फॉर्मूला में आता है, क्योंकि 2 इंडिकेटर हो गए ना ये। इसको अलग नॉर्मलाइज्ड करोगे, इसको अलग नॉर्मलाइज्ड करोगे, गेटिंग? देन वी विल पुट अ फॉर्मूला। बट अब ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते। नाउ HDI is being calculated by health index into life expect कौन सा ये, एजुकेशन इंडेक्स इनटू इनकम इंडेक्स, ज्योमेट्रिक मीन। पहले कौन सा था? अर्थमेटिक मीन। पहले हम अर्थमेटिक मीन एवरेज निकालते थे ना, अर्थमेटिक मीन निकालते थे, अब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेटिंग द HDI एज वेल, गेटिंग? एक और चीज इसमें आपको बताना है, एक सेकेंड। ये दो, चलो ये चीज आपको आती है, ये आती है, ये वाली, ये तो हम अपनी कंट्री में निकाल लेते थे। जीडीपी, देश की जीडीपी कितनी है, यहाँ पर अब हमने कंपेयर करना है ना यूएस डॉलर से, तो इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस पॉजिटिव इंडिकेटर है, ठीक है? तो क्या होगा? एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल GNI माइनस 100 कितना है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बट दैट विल बी इन द यूएस डॉलर्स ओनली, है ना? इसमें थर्ड इंडिकेटर को भी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, उसमें भी कर रहे थे, मगर इसमें हमें पता होता था कि हमारी जीडीपी कितनी है, टोटल नंबर ले लेते थे क्योंकि अपनी कंट्री का ही लेना है, कंपेयर तो करना नहीं था। यहाँ पे कंपेयर करना है तो हमें इसको पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, गेटिंग? नाउ आई एम कंपेयरिंग द ओल्ड मेथोडोलॉजी विद द न्यू मेथोडोलॉजी। पहले हम लेंगे वैल्यूज का डिफरेंस, वैल्यूज में भी डिफरेंस आया, फिर हम लेंगे फॉर्मूला में डिफरेंस एंड अदर थिंग्स। सो स्टार्टिंग विद द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओल्ड मेथोडोलॉजी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, न्यू मेथोडोलॉजी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अर्लियर वी वर टेकिंग 25 इयर्स एंड 85 इयर्स। मैक्सिमम आप किसी भी कंट्री में अगर वर्ल्ड इकोनॉमीज में अगर जिएंगे तो वो 85 इयर्स होगा, और अगर मिनिमम जिएंगे तो वो 25 इयर्स होगा, जो कि चेंज होकर हमारा मिनिमम हो गया 20 इयर्स और मैक्सिमम हो गया 83.5 इयर्स। दैट हैज बीन डिक्रीज्ड। सेकेंड हमारा इंडिकेटर कौन सा है? अभी देखो दोनों इंडिकेटर अलग अलग है। यहाँ पे लिटरेसी और ग्रॉस एनरोलमेंट था, या मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग है, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग है। तो उसके लिए हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज बाय 2/3 तो अपनी कंट्री का था ना,
तो इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, हम अपनी कंट्री का एडल्ट लिटरेसी निकाल रहे हैं कि आपकी कंट्री में कितने % लोग एडल्ट जो है वो पढ़े हुए होंगे, दैट इज टोटल नंबर एट योर कंट्री। ग्रॉस एनरोलमेंट आपकी कंट्री की, आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने लोग पढ़े हुए, तो इसमें कंपैरिजन नहीं था। यहाँ पे हम वही ले रहे हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ये कौन सा है हमारा एजुकेशन इंडेक्स। इसमें हमारा क्या है, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे आ गया कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम मीन इयर्स निकालें कि लोग मैक्सिमम कितना पढ़ते हैं, तो दैट इज योर 0, मिनिमम इज 0, पढ़ ही नहीं रहे, एवरेज 0 आगे कोई नहीं पढ़ रहा, मैक्सिमम इज 13.2 इयर्स। अब इसके आगे भी मैक्सिमम मिनिमम 2 आना चाहिए, maximum and minimum. Minimum stands 0 and maximum stands 13.2 years. Same as expected years of schooling, that is minimum 0. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि people will come after. अगर illiterate होंगे तो 0 ही आंसर आएगा, and the maximum is 20.6 expected years of schooling. Third is income index. इनकम इंडेक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इनकम वी आर जनरेटिंग, दैट वाज इनिशियली बाय टेकन, उसमें जो हम लेते थे मेथोडोलॉजी में ले भी सकते थे, उसमें जीआईडी थी, इसमें नहीं भी ले सकते थे क्योंकि इंडिया की अपनी निकालनी है। अब हम लेते हैं, अगर आपने इसकी जब ये वैल्यूज आई तो उन्होंने पीछे की वैल्यूज भी देनी शुरू कर दी है, तो इसकी हमारी मैक्सिमम और इसकी हमारी मिनिमम। 100 स्टैंड्स फॉर द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम 10825 108,211 108,211 यूएस डॉलर्स। ऑब्वियसली वो डॉलर्स में चल रहा है, ये सारे डॉलर्स में है, और ये वाली जो है हमारी ये रुपीस में ले रहे हैं, है ना, क्योंकि पहले तो नहीं ले रहे थे ना, वो डॉलर्स में ले रहे हैं, हम ये डॉलर्स ले रहे हैं। लिख लो साथ में फिर, दैट इज टू बी 1000 100 and 40,000। इंडिया की ले रहे थे ना मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, मिनिमम The next thing is about the calculation or formula. It tells us about the arithmetic mean, education index plus health index plus income index divided by 3. It tells us about the geometric mean. So वो हमारा एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स एंड ज्योमेट्रिक इंडेक्स कैलकुलेशन करना है। So this is the difference between the both of the methodology prior to 1990 and after 2010. So that is the two differences we have calculated, that is to be done in the new and old methodology. इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम करंट पे आ रहे हैं, ये स्टैटिक है, मैं अभी इसका डायनामिक भी आपको बताऊंगी। इनमें से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आई एक्सपेक्ट कि आ ही जाते हैं, क्योंकि ये सबसे रिसेंट आपका इंडेक्स है। इसके बाद जो नई मेथोडोलॉजी ना, इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस आता है। यू रिमेंबर दिस वन, दे कम अप विद दिस वन, इसका कोई इंडिकेटर उठा लेते हैं, इसका कोई इंडिकेटर उठा लेते हैं। तो प्लीज कीप इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू विद द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज बेसिकली, ये वैल्यूज वगैरह थोड़ी सी याद करने के लिए ना। शैल वी मूव? Okay, so now we will move to the recent HDI report. They said that according to Human Development Report of 21-22 or 2021,
इंडिया ने 2 रैंक्स पीछे आ गए। एक तो पेंडेमिक की वजह से भी 2021 में वी गॉट हिट। अर्लियर वी हैव 130 रैंक बट नाउ वी एट 132 रैंक। अच्छा है? नहीं, रैंक तो ठीक है, रैंक तो खराब ही है। आई वांट टू आस्क लाइक फ्रॉम 30 टू 132 आना, 2 रैंक गिर गए ना हम। गेटिंग? गिर गए, है ना? जितना आप रैंक पीछे जाएगा उतना आप खराब हो रहे हैं। जितना आप रैंक में कम नंबर पे आएंगे उतने फर्स्ट सेकंड पे आते रहेंगे। तो आप लाइन में खड़े हैं तो 130 रैंक पे, पहले 132 पे आ गए, है ना? तो हम 2 रैंक पीछे चले गए। सो वी डिक्रीज द 2 रैंक्स बाय द 2 years back, which is being considered as an 132 rank, and because of this rank हमारा इस बार का जो HDI रिपोर्ट है, आप उसमें से जो भी रिसेंट आप whenever you will give exam, रिसेंट HDI रिपोर्ट का एक तो आप थीम जरूर रखेंगे माइंड। उस हर थीम आता है, हर जब भी HDI रिपोर्ट आती है तो उसके एक नाम आता है। अभी की जो हमारे पास 21-22 की रिपोर्ट आई है उसका नाम है, लिख लीजिए, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन टाइम्स। 21-22 की है ये, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, unsettled lives, shaping our future in a world of transformation, in transformation. Grammatically तो correct नहीं है, in but in transformation means to say because it is a pandemic time period, so they want that unsettled times, time भी थोड़ा सा है, uncertain है, unsettled lives भी बहुत disturbed है, shaping our future in the world, अपने आप को शेप करने की कोशिश करें in transformation। ये जो पेंडेमिक के बीच में हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो हमारा नया प्रोसेस है फ्यूचर को शेप करने का। तो बस ये ध्यान रख लेना, पूरा तो लर्न नहीं रह पाता, बट जस्ट कीप इन योर माइंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट 21-22 रिपोर्ट, इट्स अबाउट जस्ट आफ्टर द पेंडेमिक एंड अनसर्टेनिटी, अनसेटल्ड थिंग्स वर देयर, और वो ट्रांसफॉर्म करनी है। तो ये 2 वर्ड्स में याद रखिएगा, आपको अपने आप अपनी थीम निकल के आ जाएगी। तो थीम से भी कई बार वर्ड आ जाता है, 2-4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट थीम का नाम होता है, ठीक है? सो अंडर दिस थीम वी हैव दिस HDI रिपोर्ट। अभी हमने जब 191 कंट्रीज आ गई हैं टोटल, जब हम इसको कंपेयर करते हैं, HDI को रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं, हम कितने रैंक पे? 132, दैट इज इंडियाज रैंक, ठीक है? हु इज इन टॉप फर्स्ट रैंक? कौन है जी फर्स्ट रैंक पे? नॉर्वे पहले था, स्विट्जरलैंड इज ऑन फर्स्ट, नॉर्वे इज ऑन सेकंड, आइसलैंड इज ऑन थर्ड। तो दोनों लैंड, आइलैंड, थाईलैंड सेम सेट है। स्विट्जरलैंड स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, Norway stands for second, and Iceland stands for third in your ranks at international level out of 191 countries, and we are standing on the 132. So इसके बाद हम, you can write down a bit of things. स्विट्जरलैंड का रैंक तो फर्स्ट है एंड द वैल्यू इज 0.962, और इसी के बाद 0.961 है नॉर्वे का। बहुत डिफरेंस माइन्यूट सा है विद द HDI वैल्यू। ये है हमारी HDI वैल्यू, ये है हमारा रैंक, ठीक? टॉप 3 है, इसके बाद आइलैंड है, दैट आइसलैंड है, वो है 959 पर, वो थर्ड रैंक पर है। 3 कंट्रीज हो गई इसमें, डन। ये करंट में लिख लो, थोड़ा सा ऐड कर लो। अभी इसके बाद हम अगर एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें
तो श्रीलंका इज इन अ बेटर प्लेस रेदर देन वी पीपल, ठीक है, हमारी एशियन कंट्रीज के ग्रुप में। राइट डाउन, लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका इज इन अ बेस्ट परफॉर्मर रेदर देन इंडिया इन दिस सब कॉन्टिनेंट। श्रीलंका इज अ बेस्ट परफॉर्मर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। चाइना 79 रैंक, 79th rank, 79. Value is 0.768 with the HDI value of 0.768. Bhutan 127. ये थोड़े इंडियन कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है। भूटान 127 with the value of 0.666. China is 79th rank, 0.768 value of HDI. Sri Lanka stands for 73 rank, 73, and the value is 0.782. 782. Pakistan stands for 161 rank, 161, and value is 0.544. India is at 132 rank and the value is 0.633. Done. इसमें जरा सा एक पार्ट आई जस्ट लेफ्ट इन बिटवीन। वर्ल्ड इकोनॉमीज में जब हम HDI की वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं, उनके बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ द वैल्यूज वी आर डिवाइडिंग द नेशंस इनटू 4 ग्रुप्स। हमने इफ यू रिमेंबर हमने पॉवर्टी में भी 4 ग्रुप्स डिवाइड किए थे, हाई डेवलप्ड, अपर मिडल, लोअर मिडल एंड लोअर। यहाँ पे वो मिडल वाला काम नहीं किया, इन्होंने सिंपल किया वेरी हाई, हाई, लो, वेरी लो। इन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वर्ल्ड इकोनॉमीज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अपर ग्रुप में 66 कंट्रीज आती हैं, 66 कंट्रीज कम अप द हाई इनकम ग्रुप, हाई, वेरी हाई HDI ग्रुप। उसके बाद है हमारा हाई ग्रुप। वेरी हाई में 66 कंट्रीज हैं, हाई ग्रुप में 53 कंट्रीज हैं, 53 कंट्रीज कम अप द हाई ग्रुप। मीडियम ग्रुप में 37 कंट्रीज हैं, इंडिया मीडियम ग्रुप में आ रहा है। मीडियम ग्रुप में 37 कंट्रीज हैं एंड लो ग्रुप में 33 कंट्रीज हैं। मीडियम 37 एंड द लास्ट में 33। ठीक है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2020-21 अगर हम उसका डेटा आज इस वाले अकाउंट पे निकालना चाहें, 67.2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.2। It's 2021 data. You may take it the 23 data as well to compare. Expected years of schooling, EYS, expected years of schooling, 11.9 years. Mean years of schooling is 6.7 years. 6.7 years, 6 साल. And GNI per capita, GNI, PPP US dollar, GNI PPP US dollar, India's gross national income and purchasing power parity US dollar is $6590, $6590। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने आपकी 3 करंट वैल्यूज डाली हुई थी और सिर्फ इसमें उन्होंने किसी एक में नंबर में थोड़ा गड़बड़ किया हुआ था, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 2021 की है। एक चीज और हम थोड़ा सा ये हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3rd गोल में। हाँ जी ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
LE लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम, ये तीन इंडिकेटर्स हैं HDI के, ये तीनों इंडिकेटर HDI के हैं। इसके बाद हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, उस पर भी क्वेश्चन आता है आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसी का गोल ही है वो, कि अगर आप अभी हम ये भी करेंगे SDP भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक इंडिकेटर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये वाला इंडिकेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थर्ड पार्ट है, वो उसी का लिया हुआ हिस्सा है। Same as mean years of schooling and expected years of schooling is taken from 4.3 and 4.4. Sustainable Development Goal 4.3, Sustainable Development Goal 4.4. ये हमारे उन्हीं गोल्स का सब्सिडरी पार्ट है जो हमने HDI में, क्योंकि HDI तो पहले आ गया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बाद में बनाए हैं, तो वही कंटिन्यूएशन, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है कि इकोनॉमी के सारे कंपोनेंट्स को मेजर करो, हेल्थ को भी, एजुकेशन को भी, सैनिटेशन को, एंड एवरी सिंगल थिंग। तो उसमें से कुछ गोल्स हमारे सेम पैरामीटर पे आ रहे हैं, और इनकम का गोल जो है हमारा 8.5 गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.5, दैट इज योर इनकम इंडेक्स का गोल है। एजुकेशन का 2 गोल्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का गोल 3 है। अभी आपको इस चीज के बारे में समझ नहीं आ रही क्या गोल है क्या है। गोल मीन्स टू से, जैसे इसमें 3 इंडिकेटर लिए ना, कौन कौन से इंडिकेटर लिए? हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। सेम एज व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन नंबर्स के गोल्स लिए। अब जैसे ये वाला गोल देखो, ये कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसका है? हेल्थ का। तो हेल्थ का पहला गोल 3 नंबर हेल्थ का है, 3.1, 3.2, 3.3 बहुत सारे हुए, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी और कुछ हेल्थ, एनीमिक कितने हैं, स्टंटिंग कितने हैं, वेस्टिंग कितने हैं, हेल्थ के सारे कंपोनेंट्स को 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 नंबर दे दिए। फिर उसमें ले लिया एजुकेशन का, एजुकेशन में 1 और 2 कुछ होगा, लिटरेसी रेट कितनी है, नंबर ऑफ लोग कितने, ड्रॉप आउट्स कितने हैं, 3, 4, 5 सारे एजुकेशन के पॉइंट्स ले लिए। फिर उन्होंने ऐसे ही हेल्थ का लिया, उसका लिया होगा, सैनिटेशन को 5 नंबर ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी को 6 ले लिया, रोड ट्रांसपोर्टेशन को 7 ले लिया, ऐसे ही इनकम को 8th रैंक लिया। इसमें ही हो सकता है प्रोडक्शन भी लिया हो, GDP पर कैपिटा भी लिया हो, तो वो 8th गोल है। इस तरह से हमारे पास 16 गोल्स एंड 162 इंडिकेटर्स, कुछ ऐसा है, 17 गोल्स एंड 162 इंडिकेटर्स। तो वो 17 गोल्स के एक कंपोनेंट को एक गोल दिया, और 162 उसके इंडिकेटर है, फर्दर उसके सब डिवीजन है। So somewhere somehow it is a big target to achieve. तो उसी में से हम हर कोई ना कोई क्वेश्चन के साथ वो अटैच कर लेते हैं कि उसमें से कौन सा गोल कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द गोल्स ऑफ SDP एंड इन द HDI only. और कर लें 5:30 क्लास, ठीक। इसके बाद हम वैसे 2 टॉपिक्स और करेंगे। It is IHDI and GI, Gender Inequality Index, Inequality Human Development Index, and एक 2 और इंडेक्सेस हैं, ग्रीन इंडेक्स भी है आपके पास, that we will try to complete the indices, then we will come up to the other topics.